Okay, this is an orientation class. You're not going to do some syllabus or something. Okay, this is an orientation regarding your practical exam. We'll be having theory as well as practical. Theory is on 15th, I think. Okay, physiology. Okay, then we are having practicals from 18th. Okay, so your class will be divided into different batches A, B, C, D. So sequence wise will come and we'll do the practical. In practical, till date we have completed amphibian and we have started with hematology. Okay, in amphibian we have completed the properties of skeletal and cardiac muscle. Along with this, each and every experiment we have started the amphibian with some instruments. Okay, some dissection procedures. We have shown you videos. Okay, you have your amphibian record with you. Okay, so everything is there. So the amphibian lab is totally a demonstrative exercise in which you need not to perform. So it will test only your knowledge. It is not going to test your skills because you are not performing anything with your hands. Whereas in hematology and clinical, you will be doing something with your hands, so it will be a skill. So psychomotor, knowledge, skill, everything will be tested in hematology and clinical. Clinical, we have not started, we have only started with hematology lab. In that also, we have completed only microscope, hemoglobin estimation, and hemocytometer, and total leukocyte count. That is being done by each and every student. Okay, demonstration. What demonstration we have covered is ESR, PCV, osmotic fragility. We have completed demonstration of peripheral blood cells. Okay, so there are demonstrations, there are practical, demonstrative labs, demonstrative exercises of amphibian. So in practical, we have this much of syllabus to be assessed by us. Okay, so now the new regulations, according to new regulations, the pattern of examination has changed. So we need to make orientation regarding this new set of examination pattern. Okay, so in routine time, it was done that the student used to come to the lab and he or she has to perform practice. Okay, तो आप आएंगे आपको चिट अलॉट हो जाती है, आप जो भी चिट लेते हो तो आपका वो प्रैक्टिकल हो जाता है. सपोज अपन ने भी हीमोग्लोबिन किया, टीआरबीसी किया, टीएलसी किया, तो जो स्टूडेंट आता है वो अपनी कोई भी पर्ची उठाता है, student has to perform the practical and there has to be a table regarding that particular practice. तो अपने दोनों तरह के पैटर्न चलते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम हम आपको ओरिएंटेशन देना चाहते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय ऑस्टी. OSCE is Objective Structured Practical Examination. Okay, this is a new type of examination. When you go to the clinical side, it will become OSCE, Objective Structured Clinical Examination. Clear? So when we are there in first MBBS, okay, second, then we have OSCE. When we reach to the clinical side, it becomes OSCE, Objective Structured Clinical Examination. What you get questions in theory is define homeostasis. Yes, that will be of 2 marks. 2 marks. Okay. Then give 2 examples of positive feedback mechanism. Again 2 marks. Okay. Elaborate any one mechanism, that will be of 6 marks. So total you get 10. So the question has been structured. Okay. It is not subjective कि तुमने कुछ भी लिख दिया, एक में definition लिख दी, एक में type लिख दी, एक में उसको detail लिख दी. Everything has been structured. Definition is, so it will not be a biased assessment. जो definition लिखी will get marks. अगर आपने नहीं लिखी, if you have written the example, 2 marks. If you have explained the example, again you get 4 or 5 marks. So everything has been structured. So similarly, we have tried to structure the practical question. Okay, so it will be objective, structured, practical examination. Okay, so depending on the examiner and depending on the circumstances, we might go for OSCE in university exam, we might go for routine practical examination. So this time we are exposing you to OSCE, next time we will expose you to the routine examination. So you will be familiar. ठीक है, समझ में आ गई बात. हम फर्स्ट टाइम करेंगे OSCE, फिर सेकंड टाइम हम करेंगे routine examination, second internal में, फिर यूनिवर्सिटी में depending on the examiner and the circumstances, whatever the situation is.
just an orientation regarding. So introduction, it may be defined as a new pattern of practical examination in which each component of clinical competency, okay, is tested uniformly and objectively for all the students who are taking up a practical examination at a given place. Okay, अब क्या होगा, रूटीन पुराने टाइम में क्या होता था, इसको हीमोग्लोबिन मिल गया, इसको आरबीसी मिल गया, इसको टीएलसी मिल गया, इसको ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप इज टू इजी, ओके, बीटीसीपी बहुत इजी हो गया। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्टिव हो गया कि इसका तो इजी आ गया, इसका हार्ड आ गया, ठीक है। सपोज ये ब्लड ग्रुप नहीं पढ़ के आई, वो पढ़ के आई, ये नहीं पढ़ेगा, ये पढ़ा, तो ये बहुत वेरिएशन हो जाता है। तो इसमें क्या, सेम सेट ऑफ क्वेश्चन है, एवरी स्टूडेंट हैज टू गो थ्रू द सेम क्वेश्चन, so it will not be totally biased. आपने जो किया उसका आपको immediate result मिलता है and it will be uniform. Okay? It will not be a biased thing, it will be a uniform thing. Clear? ठीक है, तो किसी को ये नहीं रहेगा कि मुझे मैम ने इतने दिए, सर ने इतने दिए, कितने कितने दिए. It is, everything is structured. If you have done that, you'll get marks. If you have missed that particular part, you are not going to get marks. जैसे हमने थ्योरी में क्वेश्चन को स्प्लिट कर दिया, वैसे हमने प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन या एक्सरसाइज को स्प्लिट कर दिया. अगर एक्सरसाइज है तो उसको भी स्प्लिट कर दी, केवल सिंपल क्वेश्चन है तो उसको भी स्प्लिट कर दी. तो आप कोई भी प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, अब अपनी जो मैनुअल है, ठीक है, दैट इज मैनुअल. मैंने आपको 1000 बार बोला होगा क्लास में कि यू नीड टू हैव अ पीडीएफ ऑफ CL3 downloaded in your PC, laptop, wherever you are set. Okay, so when you read through the practical book, you go through the proper steps of each and every experiment. Okay, so by going through all the steps of practical, okay, एक भी सिंगल प्रैक्टिकल है तो उसके स्टेप बाय स्टेप आप जाते हो, तो जब आप ऑप्टी पे आते हो तो आप मिस नहीं करते. ठीक है, अब जैसे अभी अपन हेमेटोलॉजी चल रहा है, क्लिनिकल स्टार्ट होगा, क्लिनिकल में पल्स एग्जामिनेशन, ठीक है, सबसे पहला पल्स होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा. आप किस तरह से एंटर हो रहे हो, हाउ यू ट्रीट द पेशेंट और द सब्जेक्ट, ओके, आप पेशेंट के किस साइड खड़े हो रहे हो, ठीक है, इन सबके मार्क्स होते हैं. हाउ यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हाउ आर योर इंटर कम्युनिकेशन स्किल्स, आप क्या रूड हो रहे हो, सॉफ्ट हो, किस तरह से हो, ठीक है, आपने पल्स के लिए कौन सी फिंगर्स ली, किस साइड आप खड़े हुए, कैसे आपने पल्स लिया, क्या आपकी रीडिंग रही, तो ये सब क्या हो गया, स्ट्रक्चर. क्लियर? पर अभी अपना क्या है, केवल एमपीसीएन और हेमेटो. ओके, ऑब्जेक्टिव इज दे आर आल्सो यूजिंग द सेम स्टेशंस और क्यूज. स्टेशंस मीन जैसे अपन स्पॉटिंग के लिए करते थे ना, तो हम एक स्पॉट या एक एक्सरसाइज को एक स्टेशन बोलते हैं. तो यह नंबर ऑफ स्टेशन, बट स्टेशन रिमेन्स द सेम, एक्सरसाइज रिमेन्स द सेम. ठीक है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा. तो candidates are assessed using exactly the same station of views with the same marking scheme. हमने यूनिफॉर्म मार्किंग रखी है. बच्चे ने माइक्रोस्कोप का स्विच ऑन किया, 1 मार्क, नहीं किया. ये एग्जांपल बता रही हूँ मैं बीच, ये मतलब हर चीज के मार्क्स हैं. ये नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर को हम देंगे और किसी पर्टिकुलर को नहीं देंगे. There will be an observer standing on that particular station. Okay, so he or she will be observing you. क्या है ये? Objective, structured, practical examination. Candidate gets marks point for each step that they perform and or answer correctly. This makes the assessment more objective rather than subjective. The examiner covers a broad range of practical and clinical skills. अब मैं किसी को एक प्रैक्टिकल दूंगी तो मैं उसकी एक की स्किल टेस्ट करूँगी. मैंने पूरी क्लास को 10 प्रैक्टिकल दे दिए, तो मैं कम से कम उससे 10 स्किल्स या नॉलेज टेस्ट कर, समझा? तो इट इज अ ब्रॉड रेंज ऑफ असेसमेंट. A preset structured mark scheme is used. We prepare the checklist or the mark list. कि इस चीज के ऊपर हम उस स्टूडेंट को इतने नंबर देंगे. This is already set. Okay.
वो सब सेट होती है, वो हमारे पास होती है कि हमें किस किस चीज पे पॉइंट पे इनको मार्क्स देने या नहीं देने। जब आप बुक पढ़ोगे तो बुक के अंदर चेकलिस्ट है, आप अपनी लॉग बुक्स में देखना, उसके अंदर भी चेकलिस्ट हर प्रैक्टिकल, ठीक है। रिटन आंसर शीट आर ऑब्जर्व्ड एंड असेस्ड बाय यूजिंग चेकलिस्ट, द स्कोरिंग इज ऑब्जेक्टिव। What are the features of OSCE? Number of stations. How many number of stations are there? Okay, depending on the mark distribution, we might have 5 stations, we might have 10 stations, we might have 15 stations. So depending on the mark, 50 mark का है, 100 mark का है, ठीक है। So depending on the mark, we make the station. Depending on the lab, अगर हमें 3 lab cover करने हैं तो हम ज़्यादा स्टेशन चुनेंगे, हमें 2 lab cover करने हैं तो हम कम स्टेशन चुनेंगे, ठीक है। Station means roughly you can consider it as a spot, okay, like अपन spotting के लिए करते हैं वैसे। Duration means आप एक spot पे कितनी देर तक रहेंगे, okay, so duration depending on the number of exercises। अगर stations कम है और simple exercise हमने दिए तो हम उसको 1 मिनट में दे सकते हैं, 2 मिनट में दे सकते हैं। So it depends on the assessor कि वो कितने मिनट का आपको टाइम स्लॉट देता है, ठीक है। इट इज वेल डिफाइंड, वेल गिवन। जब इंस्ट्रक्शन देते हैं तब सब कुछ बताया जाता है बच्चों को, ओके। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन डायरेक्शंस टू बी फॉलोड प्रॉपर्ली, जो आपको बोला जा रहा है उस दिन प्रैक्टिकल के दिन सुबह आपको ओरिएंटेशन दिया जाएगा, इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। हैव अ थॉरो नॉलेज ऑफ चेकलिस्ट ऑफ ऑल द प्रैक्टिकल। अब आप प्रैक्टिकल करते हैं मेथोलॉजी में, सबसे पहले माइक्रोस्कोप का करते हैं, ठीक है। तो उसमें माइक्रोस्कोप का आपने आपकी सीट पे है या नहीं, पहली बात नहीं है, did you ask for microscope, ठीक है, माइक्रोस्कोप आ गया। how did you connect it, whether the source of light was on or off, okay, before using the instrument you clean the microscope, okay, then was there any slide placed on the microscope or you placed the slide, okay, then when you are using the microscope first हमें किस पे you focus करना है, 10x 10x का आपने फोकस किया तो what changes you made, कंडेंसर की पोजीशन क्या रही, आपकी आइरिस की क्या रही, है ना, तो आपने वो चेंज किया या नहीं किया। When you switched over to 40, did you change the position of condenser, ठीक है। फिर 100 को यूज करने से पहले क्या आपने ऑयल लगाया, क्या आपने कंडेंसर की पोजीशन चेंज की, तो वहाँ जो ऑब्जर्वर है वो ये सब असेस कर लेगा 2 मिनट, है ना। तो ये तब हो सकता है जब आपने उस प्रैक्टिकल को थॉरोली पढ़ा हो, तब जाके आपकी नॉलेज और स्किल दोनों का इवैल्यूएशन होगा। और जो फीडबैक क्या होता है वो इमीडिएट मिल जाता है। हमारे पास चेकलिस्ट है, इस रोल नंबर ने ये किया तो विल पुट टिक और विल गिव यू मार्क्स और पॉइंट। तो इमीडिएट फीडबैक, प्रेजेंस ऑफ माइंड हैज टू बी देयर, नॉलेज हैज टू बी देयर, स्किल रहेगी आपके साथ, क्लियर। तो इसकी सबकी चेकलिस्ट बनी रहती है। अब इसका ये एक एग्जाम्पल है, अभी अपना ब्लड प्रेशर का चला डेमो, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड हमने क्या किया, पेशेंस बना दिया। पेशेंस मीन्स प्रैक्टिस। आप जब सब स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है, तो अपनी 2 चीज होगी, एक तो होगा ग्रैंड वाइवा और एक होगा प्रैक्टिकल। ग्रैंड वाइवा मीन्स द थ्योरी वी हैव कवर्ड टिल टुडे, जो आपके सिलेबस में थ्योरी का सिलेबस आ गया आपके पास में, तो उसके ऊपर ग्रैंड वाइवा होगा। ग्रैंड वाइवा में आपको communication skills, your knowledge will be tested, okay. Other than grand viva, we'll be having this also. So first half an hour we'll be having grand viva सारे बच्चों का, उसके बाद में हम शुरू करेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दे दी जाएंगे। आप कोई भी जो भी आंसर शीट आपको मिलती है उसके ऊपर सबसे पहले अपना नेम, रोल नंबर, प्लीज स्पेसिफाई इट इन अ नीट हैंड राइटिंग, ओके। देन यू विल बी गिवन, इस कॉपी को आपको दिया जाता है, उसके अंदर स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3, ओके। 2 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, आपको वो स्टेशन आंसर करने हैं या परफॉर्म करना है, जो भी है, ठीक है। उसको करने के बाद जैसे हमने 10 एक्सरसाइज लगाई है सपोज, तो 5 एक्सरसाइज के बाद में हम आपको एक रेस्ट स्टेशन देते हैं। तो उन 5 एक्सरसाइज में अगर आपका कुछ लिखने का मिस हो गया, ठीक है, तो आप उसको रेस्ट स्टेशन पे आके लिख,
फिर तो जो करने की चीज है वो पहले करना, क्योंकि लिखने के लिए आपको क्या मिलेगा, रेजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो यू कैन कंप्लीट द लेफ्ट ओवर थिंग ओके ऑन द फर्स्ट रेजिस्ट्रेशन। वहाँ पे आप नाम और रोल नंबर लिखते हो, उसको हम बोलते हैं जीरो स्टेशन। Once the student enters into the lab or the room where he gets the copy to write the name, roll number, that becomes zero station. Then we have first station, second station, third station, fourth station. Okay, so हर 2-2 मिनट में बेल बजेगी and the student will move according to जैसे spotting में होती है। पर इसमें क्या हो रहा है, बीच में आपको रेजिस्ट्रेशन दे रहे हैं ताकि आप उसको कवर कर लें और आपको 2 मिनट में परफॉर्म भी करना है। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द स्पॉट वेदर इट इज सिंपल ग्राफ और सिंपल क्वेश्चन तब तो आप लिखोगे डेफिनेटली, पर अगर आपको फोकस करना है, परफॉर्म करना है, तो फिर आप उसको परफॉर्म करें। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना कि हम परफॉर्म कर लें, क्योंकि लिखने के लिए हमें रेस्पिरेशन, समझ गए? अब जैसे ये है, प्रिपेयर अ ब्लड स्मेयर फ्रॉम गिवन ब्लड सैंपल, ये स्टेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसकी चेकलिस्ट जिसके बेसिस पे हम स्टूडेंट को इवेलुएट करेंगे। ठीक है, कि उसने आते ही सबसे पहले क्या किया, वहाँ पे स्लाइड रखी हुई है। ठीक है, पूरा बॉक्स रखा हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेलेक्ट 4-5 क्लीन ग्लास स्लाइड्स बाय होल्डिंग देम फ्रॉम एजेस। अब उसने स्लाइड आते ही अगर यूं पकड़, ठीक है, तो गया, आपको स्लाइड कहाँ से पकड़नी, एज। वेरी मच स्पेसिफाइड, कोई आर्ग्यूमेंट का कोई टेंशन ही नहीं है, तो वो आपका 1 नंबर हो गया। ठीक है, अब आपने पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन ईच स्लाइड अबाउट 1 to 2 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड ऑफ द स्लाइड। तो आपने ब्लड की ड्रॉप सेंटर में रखी, साइड में रखी, कॉर्नर पे रखी। ठीक है, अगर आपने 2-3 सेंटीमीटर डिले वहां से रखी एज पे, इट इज ओके। अगर आपने सेंटर में रखी, कॉर्नर पे रखी, एज पे रखी, तो मार्क्स पे, तो उसमें कोई आर्ग्यूमेंट का कोई वो ही नहीं है पॉइंट। वी हैव मेड द चेकलिस्ट दैट दिस हैज टू बी डन, सो दिस हैज टू बी डन। ओके, चेक फॉर द एजेस ऑफ स्प्रेडर, कि आपने जिस स्लाइड पे स्प्रेड करना उसका स्प्रेडर आपने सेलेक्ट किया या नहीं, या कोई सा भी स्लाइड उठाई और उससे स्प्रेड करना, उसका भी एक नंबर है। ठीक है, फिर आपने स्प्रेडर को कहाँ रखा, ब्लड ड्रॉप के आगे रखा, पीछे रखा, किस एंगल पे रखा। ठीक है, उसका भी 1 नंबर हो गया। आपने उसको प्रॉपरली बैकवर्ड करके मतलब स्प्रेड किया या नहीं किया, उसका 1 नंबर हो गया। ठीक है, चेक द स्मीयर, कि आपने बनाने के बाद स्मीयर को चेक किया नहीं किया। ठीक है, और आइडियल स्मीयर किस शेप का होता है, सन शेप का होता है, 3/4 ऑफ द स्लाइड को कवर करता है, सिंगल सेल थिक लेयर होती है। क्लियर? तो ये पॉइंट्स होते हैं चेकलिस्ट के। तो हम उस क्वेश्चन को हमने 10 मार्क्स में डिवाइड कर दिया, तो हमारे लिए इजी हो गया कि बच्चे ने ये स्टेप्स की या नहीं। क्लियर? जैसे आप आए, आपने हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करना है। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के लिए सपोज मैंने 4 इंस्ट्रूमेंट रखे, तो डिड यू पिक द राइट सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट? तो फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई 1 नंबर की। ठीक है, हाउ डिड यू पिक योर फिंगर, 2 नंबर हो गए। डिड यू यूज द पिपेट प्रॉपरली, 3 नंबर हो गए। पिपेट में आपने कितना ब्लड फिल किया, 4 नंबर हो गए। ठीक है, उसमें फिल करने से पहले क्या आपने ट्यूब में N/10 HCl डाला, और डाला तो कितना डाला, 2 नंबर हो गए। ठीक है, इमीडिएटली ब्लड आपने ट्रांसफर किया या नहीं किया, 1 नंबर हो गया। मिक्स किया या नहीं किया, फिर 1 नंबर हो गया। डिड यू वेट फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस, फिर नंबर हो गया। रिएक्शन के बाद आपने डाइल्यूशन उसको किससे किया, डिड यू यूज द स्टरर और नॉट। तो इस तरह से हमने उस एक्सरसाइज को ब्रेक। ठीक है, तो किसी का भी कोई वो नहीं हुआ कि इसने नहीं किया था या इसने किया था या इसने नहीं किया था। So that is not subjective. It totally becomes subjective. The steps if you are performing will get marks. If you are not performing, you will not get marks. ठीक है, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझा रही हूँ कि कैसे कैसे आपको करना है। ठीक है, एम्फीबियन के अंदर हमको कोई स्किल्स नहीं करनी, हमें क्या करना है, नॉलेज अपनी एग्रीगेट करनी है। You have to have ideas of number of graphs. जो अपने ग्राफ पढ़े, सिंपल मसल कर्व क्या होता है, सिंपल कार्डिक कर्व, मसल का कर्व क्या होता है, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज, इफेक्ट ऑफ पोस्चर, सॉरी टेम्परेचर का क्या होता है, ठीक है, फटीग क्या होता है, कितना है क्या है। तो ये सारी क्या हो गई प्रॉपर्टी। तो इनके ग्राफ कैसे, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट अपन क्या यूज करते हैं,
किस टाइप का ड्रम होता है, क्या होता है। तो ये जो चीजें हो जाती है तो सिंपल है, इसमें आपको देख के identify and the only skill you can do for this examination is math. Okay, so this is just an example of checklist. So we have prepared. This is station number another. Identify the focus cell in stained blood smear and write the identifying features. तो ये तो क्या हो गया आपकी एक्सरसाइज हो गई. ऑलरेडी द सेल हैज बीन फोकस्ड, वो फोकस्ड है. ठीक है, आपको उस सेल को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करके उसके फीचर्स लिखने हैं. अब उसको हमने ब्रेक कर दिया. मेंशन द कंडीशन इन विच इट इंक्रीजेस एंड डिक्रीज. 2 नंबर का आइडेंटिफाई किया, 2 नंबर का एटलीस्ट 4 फीचर्स, जैसे कि जिन पॉइंट पे आपने उस सेल को आइडेंटिफाई किया, और राइट द कंडीशन इन विच इट डिक्रीजेस एंड. ठीक है, तो इस तरह से हमने आपका असेसमेंट कर लिया और 2 मिनट में. और किसी के साथ भी कुछ पार्शलिटी नहीं हुई कि किसी एग्जामिनर ने कोई पूछा, किसी ने कुछ पूछा. इट इज सिमिलर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. Yes, this is another station in which you get a graph and identify the graph and write the price darling. Okay, so 2 marks for identification, 3 marks for graph. Yes, so depending on the station. Another station, identify the cell and mention its function. Identification 2 marks, function. Okay, if we have to make it for 10 marks, we will add more of the question. Write the composition of the Leishman scale. We can add anything, but that will be uniform for all the students. ये नहीं कि एक बच्चे के लिए होगा, वो सबके लिए सेम होगा. Yes, तो 4 दिन के लिए हमने 4 अलग अलग सेट्स बना रखे. इट इज नॉट कि ए के साथ जाएगा वही बी के साथ आएगा. हर दिन के लिए अलग सेट ऑफ स्टेशंस रहेंगे. ठीक है, तो ये मत सोचना कि आप इसको बता दोगे उसको बता दोगे. इट इज डिफरेंट. ये आ गया रेस्ट स्टेशन. सपोज हमारे पास में 10 स्टेशन थे, तो हमने 5 किए, 5 के बाद में रेस्ट स्टेशन आ गया. रेस्ट स्टेशन में जो हमारा छूट गया था वो हमने समझ गया. अब जैसे ये वाला है, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट एंड राइट इट यूज. ओके, दिस इज अगेन फॉर ग्राफ. दिस इज ऑल्सो ग्राफ. आइडेंटिफाई द ग्राफ एंड कमेंट ऑन इट. क्या है ये ग्राफ, बताओ. Oxygen dissociation curve. Along with this, if we get shift to the right and shift to the left, then we'll add number of questions depending on it. Write the factors which are responsible for shift to the right or shift to the left. Yeah? So all these things will be piled up in the middle of the stations. You will get rest station where you can do the writing work. Yeah? फिर हम जाएंगे नेक्स्ट पे. और जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, तो एम्फीबियन के अंदर क्या इंस्ट्रूमेंट्स थे. आपका काइमोग्राफ था. ठीक है, और आपके लिवर थे. ठीक है, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट, डाइसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट. तो यू नीड टू नो द इंस्ट्रूमेंट, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेस. ओके, स्टेशन नंबर, अनदर सेट ऑफ स्टेशन. Identify the instrument and write its uses. What are these instruments? What are they? क्या है ये, किस चीज का पिपेट है. हीमोग्लोबिन. क्योंकि WBC के आगे की पिपेट में कहीं ml या कोई यूनिट नहीं होती. उसकी मार्किंग क्या होती है, 11 of 101 बल्ब होता है, साइज का फर्क है. ठीक है, तो by seeing the instrument you have to identify whether this is comparator box, this is chemocytometer, this is improved Newport chambers, it is WBC pipette, it is RBC. Newport chambers की कितने uses हैं other than cell count. So you need to have the detailed knowledge. तो इसमें क्या होगा, आप चाहे परफॉर्म नहीं कर रहे हो पर आपको माइन्यूट चीजों की नॉलेज और इंफॉर्मेशन होना जरूरी है. Then you get it over within half an hour or 1 hour. Stop and writing. You have to give your answer book. You have to. Okay.
So you get viva. Viva is grand viva, that will